محبت کی دہلیز پر بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ سب ہاسپٹل سے امائمہ کو واپس ملک حویلی لے کر آئے تھے۔ راجان نے گاڑی حویلی کے اندر جا کر روکی تھی۔ امائمہ سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بالکل چپ۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں دے رہے تھے۔ بھائی ندا اور پلوشہ کو بلا دیں، راجان نے زیان سے کہا تھا۔ لیکن کیوں، اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، آپ میری بہنوں کو بلوا دیں۔ زیان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اچھا، زیان حویلی کے اندر گیا تھا۔ زیان، امائمہ کہاں ہے؟ احمد ملک نے پوچھا تھا۔ بابا وہ گاڑی میں بیٹھی ہے۔ تو اندر کیوں نہیں آئی؟ راجان نے کہا ہے کہ ندا اور پلوشہ بھی ان کے ساتھ واپس حویلی جائیں گی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، احمد ملک کہتے ہی باہر کو بڑھے تھے۔ پلوشہ، باہر راجان انتظار کر رہا ہے، آپ جاؤ۔ وہ نظریں پھیرتے ہوئی چلی گئی تھی۔ ندا بھی اسے بغیر دیکھے جا رہی تھی جب زیان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ ندا نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا زیان، پہلے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا نہیں، قصور تو ہمارا ہے۔ وہ اسے دیکھے بنا بولی تھی۔ ندا ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ میری کیا غلطی ہے اس سب میں؟ میں نے کہا ہے نا آپ کی غلطی نہیں ہے، اب چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی بولی تھی۔ ندا یار ایسے مت کرو، میری جان میری طرف دیکھو، کیوں نظر انداز کر رہی ہو مجھے؟ وہ بے چینی سے بولا تھا، جس پر ندا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نہیں بات کرو گی مجھ سے، نہ دیکھو گی میری طرف؟ ٹھیک ہے پھر، تمہیں راجان کے ساتھ تو ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ شوہر ہوں تمہارا، پورا حق ہے میرا۔ ٹھیک ہے پھر، کیا ٹھیک ہے؟ ضد نہیں کرو گی اور دیکھو گی بھی نہیں؟ اچھا جاؤ، چلی جاؤ۔ زیان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ندا اسے بغیر دیکھے آگے بڑھی تھی۔ وہ رکی تھی تھوڑی دیر۔ رک جاؤ یار، زیان نے اسے پکارا تھا۔ اب کیا فائدہ؟ تب اپنے بھائی کو سمجھاتے۔ میری چھوٹی بہن کو گھر میں جو سب کی لاڈلی ہے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی آپ کے بھائی نے۔ اس کی عمر ہی کتنی ہے؟ 18 سال کی بچی ہے وہ، اور آپ کے بھائی نے یہ تک نہیں سوچا اس پر کیا گزرے گی۔ اب آپ ہی رہیں میرے بغیر۔ وہ بغیر موڑے کہہ کر چلی گئی تھی اور جان کے دل کو لگی تھی اس کی بات۔ وہ اسے یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ اب وہ بھی اس کے بغیر رہے۔ اس میں زیان کا کیا قصور تھا بھلا؟ راجان بیٹا اندر آؤ۔ نہ میں آؤں گا نہ میری فیملی، آپ جائیں یہاں سے۔ راجان، ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ نہیں مامو جان، آپ کا نہیں، قصور تو سارا آپ کے بیٹے کا ہے، جس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا میری بہن کو۔ شادی میری بہن سے کی اور عشق کسی اور سے لڑاتا رہا۔ راجان غصے سے بولا تھا۔ امائمہ کیسی ہے میری بیٹی؟ احمد ملک نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ مر گئی، مار دیا آپ کے بیٹے نے مجھے۔ پہلے زبردستی نکاح کیا، پھر خود سے محبت کروائی، اور جب مجھے اس سے محبت ہو گئی تو دھوکہ دے دیا مجھے۔ وہ لیلا بیگم کے کندھے پر سر ٹکائے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معاف کر دو میری بیٹی مجھے، میں کچھ نہیں کر سکا، احمد ملک نے سر جھکائے کہا تھا۔ مامو جان، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ مت مانگے معافی پلیز، راجان نے کہا تھا۔ کیا کروں راجان، میرے بیٹے نے آج مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مجھے اور تو نہیں، لیکن اس بات کا یقین تھا کہ وہ امائمہ سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن آج وہ بھی اس نے غلط ثابت کر دیا۔ مامو آپ اندر جائیں، ہم جا رہے ہیں، پلوشہ نے کہا تھا۔ خیال رکھنا بچوں اپنا، اور میری امائمہ بیٹی کا بھی رکھنا۔ جی مامو۔ اور وہ لوگ چلے گئے تھے۔ آریان تب سے حویلی نہیں آیا تھا، وہ اپنے فارم ہاؤس میں تھا۔ اس کا فارم ہاؤس بہت بڑا تھا۔ وہ مسلسل بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اپنے سینے کو مسل رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا۔ اسے امائمہ کے آنسو، اس کا دکھ سب یاد آ رہا تھا۔ کیسے وہ اس سے شکوے کر رہی تھی، اس سے کہہ رہی تھی کہ اس نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا ہے۔ وہ اتنا گرا ہوا تو نہیں تھا۔ امائمہ اس کی بیوی تھی، اسے یہ تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ امائمہ نے حویلی پہنچتے ہی خود کو کمرے میں لاک کر لیا تھا۔
वो दरवाजे के साथ टेक लगाए रोते हुए नीचे बैठती चली गई थी। घुटनों में सर दिए वो मुसलसल रोई जा रही थी कि कैसे कर सकते हैं आप ये आर्यन, आप तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, ये क्यों किया आपने? अब मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? क्यों धोखा दिया मुझे जब मोहब्बत ही नहीं करते थे मुझसे? वो मुसलसल रोए जा रही थी। आज धोखा मिला था उसे, वो शख्स जो कहता था तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत, मेरा आइन हो, मेरा शीन हो, मेरा काफ हो, मेरी सांस हो, मेरा जुनून हो। आज उसी ने उससे बेवफाई कर दी थी। काश मैं कभी आपसे मोहब्बत ना करती आर्यन। वो बुलंद आवाज में फूट फूट कर रोने लगी थी। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर क्यों? वो रो रही थी, चीख रही थी बेतहाशा। सब हाल में परेशान बैठे थे और जियान को तो सबसे ज्यादा आर्यन का इंतजार था कि वो आए और जियान उसे आज मार ही डाले। जियान को बेतहाशा गुस्सा आ रहा था उस पर। क्या किया ये तुमने आर्यन, क्या किया? हाँ, वो चीखा था। क्यों इतना शोर कर रहे हैं आप सब? घर है ये, पागल खाना नहीं, वो उन्हें घूरते हुए बोली थी। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, घर है ये हमारा, कोई रिहाइश गाह नहीं है आवारा लोगों के लिए। जियान गुस्से से बोला था। अपनी आवाज नीचे रखें, पता भी है किससे बात कर रहे हैं आप? हाँ जानता हूँ, एक खटिया और गिरी हुई लड़की से बात कर रहा हूँ जो किसी के हक पर डाका डालकर बैठी है। वो गुस्से से चीख उठा था। जस्ट शट अप मिस्टर, आप होते कौन हैं मुझे ये सब कहने वाले? खुद के गिरबान में भी कभी झांक कर देखा है? जैसा भी हूँ, तुम जैसा घटिया नहीं हूँ। लड़की चीखना चिल्लाना बंद करो और कैसे बात कर रही हो ये मेरे बेटे से? इस वक्त हमारी हवेली में खड़ी हो तुम, हमना बेगम ने गुस्से से कहा था। अपने बेटे को भी समझाएं, और ये मेरे शोहर की भी हवेली है, मैं इस हवेली की बहू हूँ। अब नहीं है ये हवेली तुम्हारे शोहर की, ये मेरी अहमद मलिक की हवेली है। ना तुम मेरी बहू हो, मेरी बहू सिर्फ मेरी बेटी उमायमा है, समझी तुम? और जिसको चाहूंगा मैं इस हवेली में रखूंगा। अहमद मलिक गुस्से से उठ खड़े हुए थे। आर्यन वहां से गुजर कर अपने कमरे में जा रहा था। आर्यन, जियान ने उससे बुलंद आवाज में गुस्से से बुलाया था। जी भाई। आर्यन वापस आया था। इस लड़की को अपने कमरे में ही रखो, मेरे बेटे से, शोहर से सबसे बदतमीजी किए जा रही है, हमना बेगम गुस्से से बोली थी। जाओ तुम यहाँ से, आर्यन ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था। आर्यन, मेरी बात भी तो सुनो, मैंने कहा है दफा हो जाओ, समझ नहीं आती तुम्हें? वो गुस्से से धाड़ा था। वो पाँव पटकती वहां से चली गई थी। आर्यन, इसको तलाक दो अभी के अभी, जियान गुस्से से बोला था। भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं नहीं दे सकता। तुम्हारी वजह से फुप्पू चली गई, उमायमा चली गई और निदा भी मुझे छोड़कर चली गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा हक है ये। हक? कौन सा हक? पहले उमायमा के हक पूरे करते, उससे किए हुए वादे निभाते, या उससे शादी ही न करते। भाई प्लीज बस करते हैं अब। क्यों करूं बस? हाँ, तुमने क्यों किया है ये? बस वजह बता दो मुझे। जियान चीखा था। भाई मोहब्बत करता हूँ उससे, इसलिए। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत? तो उमायमा से क्या करते थे? वो क्या था? नफरत थी? किसी किस्म का बदला था? उसे तबाह करना चाहते थे? क्यों किया उसे तबाह? भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने मुझे रुसवा करने के अलावा और किया ही क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें आर्यन। अहमद मलिक उठकर अपने कमरे में चले गए थे। आर्यन, याद रखना, अगर मेरी बीवी वापस ना आई तो सबसे पहले तुझे ही मारूंगा मैं। भाई मैंने भाभी को नहीं कहा कि आपको छोड़ कर जाएं। आर्यन, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है इस सब की? नहीं, मैं कभी भी अपने किसी काम पर नहीं पछताता। ठीक है फिर, आज तुम फैसला कर ही लो, हम या वो लड़की? हमना बेगम गुस्से से बोली थी। मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका और उसका कोई मुकाबला नहीं, और उमायमा का और उसका? उमायमा का और उसका भी कोई मुकाबला नहीं। अच्छा ये भी अब बता दो, उमायमा का क्या मकाम है? मम्मा ये कैसे सवाल है? जो पूछा है वो बताओ आर्यन, वही जो पहले था। ठीक, तो निकालो इस लड़की को इस घर से। मम्मा आप एक बात के पीछे क्यों पड़ गई हैं? मैंने बताया है आपको, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ये बताओ ज्यादा प्यार किससे करते हो, उमायमा से या उस लड़की से? और आर्यन ने अपनी आंखें बंद की थी। 2 पल के लिए उसकी आंखों के सामने वो चेहरा आया था। आर्यन बताओ।
अपनी बीवी से। आज साबित कर ही दिया तुमने, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो बदलता रहता है और तुमने बदल ही दिया। हमना बेगम कहकर चली गई थी। नहीं, मैं अभी भी अपनी बीवी से ही प्यार करता हूँ, उसी से अभी भी मोहब्बत करता हूँ। आर्यान की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा था। उमायमा बेटा बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो। राजान ने दरवाज़ा नॉक किया था। वो देखने आया था, उसे पता था वो सोई नहीं होगी। उमायमा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था। भाई, वो राजान के सीने से लगी थी, आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे थे। गुड़िया क्या हालत बना रखी है अपनी। भाई, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? क्या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा था? वो रोते हुए पूछ रही थी। नहीं गुड़िया, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? बस गुड़िया, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। भाई, मुझे जाना है। कहाँ जाना है इस वक्त? गुड़िया, रात हो रही है। राजान ने परेशानी से पूछा था। हवेली। लेकिन गुड़िया, कहाँ न जाना है, चलेंगी या नहीं? राजान ने कुछ सोचते हुए हाँ कह दिया था। उमायमा सीट से टेक लगाए हुए थी, सारा रास्ता रोती रही थी। राजान ने गाड़ी हवेली के अंदर रोकी थी। गुड़िया, राजान ने उसे पुकारा था। जी भाई, उसने आंखें खोले पूछा था। गुड़िया, हवेली आ गई, उतरो। उमायमा ने जोर से अपनी आंखें मींची थी। राजान उतरा था और दूसरी तरफ से उमायमा को भी उतारा था। उमायमा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। इस वक्त हवेली में सब अपने कमरों में थे। आधी रात हो चुकी थी। राजान उसके साथ चल रहा था। उमायमा अंदर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उस कमरे के बाहर जा पहुंची थी जिसमें वो रहा करती थी आर्यान के साथ। उसने आहिस्ते से हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा नॉक किया था। राजान उसके साथ खड़ा था। उमायमा, गुड़िया, आपका भाई आपके साथ है, आज दिखा दो तुम एक मजबूत लड़की हो, तुम्हारी रगों में खानदान का खून बहता है। वो उसे हौसला दे रहा था। उमायमा ने अपने आंसू साफ किए थे। वो इस वक्त शदीद गुस्से में थी। आर्यान ने दरवाज़ा जैसे ही खोला था, सामने उमायमा खड़ी थी। बच्चा, आप दोनों की नज़रें मिली थी। जस्ट शट अप मिस्टर आर्यान मलिक। उमायमा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था। मत बुलाएं बच्चा मुझे, उमायमा शहरोज़ खान हूँ मैं, समझे आप? आर्यान को ठेस पहुंची थी। वो हमेशा अपने नाम के आगे उसका नाम लगाती थी। कैसा शोर है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यान की बीवी उठ कर आई थी। तुमसे पूछ कर आऊँगी अब। हाँ, मेरे मामू का घर है, जब दिल चाहेगा आऊँगी, और आखिरी दफ़ा आई हूँ, अब कभी नहीं आऊँगी, फिक्र मत करो। उमायमा ने गुस्से की शिद्दत से कहा था। हाँ ना, ही आओ तो बेहतर है, सितारा ने नफरत भरे लहजे में कहा था। तुम्हारी तो? उमायमा ने उसके बाल खींच डाले थे। पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। सितारा ने अपने बाल छुड़वाने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही जाने दूंगी तुम्हें? उमायमा ने उसे पीछे से लात मारकर नीचे गिराया था। इस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है, मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे, सितारा ने गुस्से से कहा था। जस्ट शट अप, तुम होगी पागल, मेरी बहन शेरनी है, खानदान की शेरनी, राजान ने कहा था। उमायमा ने करीब पड़े मेज से पानी से भरा जग उठाया था और आर्यान के मुंह पर पानी फेंका था और जग सितारा के सर पर दे मारा था। आर्यान हक्का बक्का रह गया था। आज उसकी बीवी शेरनी बनी हुई थी। सितारा का सर चकरा गया था उसके वार से। वो बिल्कुल तैयार न थी। वो तो उसे एक डरपोक और कमज़ोर लड़की समझती थी। उमायमा ने 3-4 लातें भी उसे दे मारी थी। उमायमा, बस करो अब, ये क्या बदतमीजी है, देखो उसके सर से खून निकल आया है, आर्यान ने उसे रोकते हुए कहा था। बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरों से निकल आए थे शोर सुनकर। अभी बदतमीजी की कहाँ है मैंने मिस्टर आर्यान, वो तो मैं अब करूँगी, वो गुस्से की शिद्दत से चीखी थी। बहुत फिक्र हो रही है ना तुम्हें अपनी बीवी की? आज इसे और तुम्हें इकट्ठा मार कर जाऊंगी, किस्सा खत्म करके जाऊंगी, वो गुस्से से चिल्लाई थी। उसने सितारा के पेट में लात मारी थी और 3-4 लातें और दे मारी थी। सितारा ने उसकी कलाई पकड़ी थी। पागल तो नहीं हो तुम? और उमायमा ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई मोड़ी थी। खानदान का खून हूँ, लड़ना और मारना बहुत अच्छे से जानती हूँ, फ्री टाइम में यही प्रैक्टिस करती हूँ, समझी?
उमायमा ने जोर से उसकी कलाई मोड़ी थी, जिससे वो कराह कर रह गई थी। उमायमा छोड़ो उसे, पागल हो गई हो, आर्यन ने उमायमा को कहा था। हाँ हो गई हूँ, उसने गुस्से से कहा था। उमायमा ने झटके से उसे छोड़ा था, जिससे वो प्रोटेक्टिव रेलिंग के साथ जा लगी थी। उसके मुंह से चीख निकली थी। ओहो, भाभी के ये रूप आज देखा मैंने, फरहान ने बड़बड़ाते हुए कहा था। उमायमा ने अब पास पड़ा वास उठाया था। उमायमा कुछ मत करना, अब रुक जाओ, आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा था। मेरी बहन, जिसको दिल है मारो, जिसका दिल है सर फाड़ो। तुम्हारा केस तुम्हारा भाई लड़ेगा, देखता हूँ कौन रोकता है मेरी बहन को। राजान ने उसको हौसला बढ़ाया था। उमायमा बच्चा रुक जाओ, आर्यन सितारा के आगे आया था। इसे बचा रहे हैं मुझसे? हाँ कह रहा हूँ, रुक जाओ, अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद हो गया। आर्यन हट जाओ मेरे सामने से। उमायमा चिल्ला उठी थी। क्या करोगी, मुझे मारोगी? हाँ मार दूंगी, कह रही हूँ हट जाओ मेरे सामने से, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। ठीक है फिर मारो मुझे, गुड़िया कह रहा है इतना तो मार दो, कहा ना मैं हैंडल कर लूँगा, राजान ने तसल्ली से कहा था। आर्यन हट जाओ, कहा ना मैंने, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो मारो ना, मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। आर्यन ने जैसे उसे चैलेंज दिया था। मैं भी उमायमा शहरोज खान हूँ, एक बार जो कह दूँ उससे पीछे नहीं हटती। तुम मारो मुझे मिसेस मलिक, नहीं हूँ मैं अब तुम्हारी बीवी, वो गुस्से से चिल्लाई थी और आर्यन के सर पर वास दे मारा था। सब हैरानगी से देख रहे थे, वो कैसे अपनी मोहब्बत को मार सकती थी। लेकिन अब आर्यन ने उसे धोखा दिया था तो उसने भी रिएक्ट करना था। आर्यन के सर से खून निकल आया था, वो डर चुकी थी, लेकिन उसका भाई उसके साथ खड़ा था, उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। चलो गुड़िया, अब राजान ने उसे चलने को कहा था। वो चलते चलते सितारा के बाल खींचते हुए और 3-4 लातें मार कर गई थी। जहन्नुम में जाओ तुम लड़की, दुआ करो कि बच जाओ, वरना अगली बार इससे बुरा मार कर जाऊंगी, वो जाते जाते कह गई थी। अहमद मलिक ने जाते हुए उसे अंगूठी से गुड का साइन दिया था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।